Oh, Mr. Jasser, I said, मैंने कहा, sick at heart, I was disturbed, but how splendid. How splendid means how excellent your boots are. आपके बूट कितने शानदार हैं. Splendid means excellent, fine. See, notice, I have been wearing this pair nearly all the time I have been abroad, and they are not half worn out, are they? Please notice, I have been wearing this pair. ये शूज में पहन रहा था. Nearly लगभग. About all the time, पूरे वक्त I have been abroad. I have been foreign जब मैं गैर मुल्क में था. And they were not half worn out. और वो निस्फ भी घिसे नहीं हैं. Worn out means damaged. Or they, it is a question tag. Or they, क्या वो घिस चुके हैं. He looked long at my boots. He looked long. Here long is adverb. It means he looked for a long time at my shoes, a pair of Russian leather. It was Russian. It was made of Russian leather, and his face seemed to regain steadiness. और उसका चेहरा, seemed means appeared to regain, to recover steadiness, firmness और stability, इस्तेहकाम. उसमें इस्तेहकाम वापस आया. It means he looked content. उसके चेहरे पर तसल्ली दिखाई दी. Putting his hand in my instep, he said, उसने अपना हाथ मेरे बूट के अंदर डाला. Do they feed you here? Do they feed here means fit you here. I had trouble with that fear. मुझे परेशानी थी इस जोड़े के साथ. That fear. Yes. I remember, मुझे याद है. I assured him that they had fitted beautifully. I assured means made him sure. मैंने उसको यकीन दहानी की कि वो मुझे अच्छी तरह से, beautifully adverb, it means very well, अच्छी तरह से मुझे वो फिट होते थे, रास आते थे या ठीक थे मेरे पाँव के लिए. Oh, do you want any boots? He said. उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कोई बूट्स, कोई शूज. I can make them quickly. मैं उन्हें जल्दी जल्दी बना सकता हूँ. It is a select time. It is a select time. आज फुर्सत का वक्त है. आज फुर्सत का वक्त है. आज फुर्सत का वक्त है. I answered, मैंने जवाब दिया. It is a select time, leisure time, free time. I answered, मैंने जवाब दिया. Please, मेहरबानी का, I want boots all round. Every kind. मुझे boots चाहिए. All round here means having a wide scope. जो किसी भी जरूरत के लिए होते हैं, किसी भी मौके के लिए होते हैं. I will make a fresh here means fresh model. मुझे एक नया मॉडल चाहिए. Fresh means new. Model means sample or design or specimen. Yes. Simple means design. I will make a fresh model specimen. Your foot must be bigger. आपके foot here means foot. आपका पाँव बड़ा होगा. And with utter slowness, बहुत शांति के साथ, आहिस्ता आहिस्ता he traced round my foot. उसने मेरे पाँव के इर्द गिर्द निशान लगाए. And felt my toes. और मेरे पाँव को, उंगली को महसूस किया. Only once, एक बार. Looking up, so looking up, ऊपर की तरफ देखते हुए, to say, कहा, क्या कहा.
Did I tell you, असल में ये tell you है, did I tell you my brother was dead, क्या मैंने आपको बोला मेरा भाई मर चुका है. To watch him was painful, so feeble had he grown. ये कहता है ऑथर, उसको देखना it was painful, it was aching, यानी इसे दर्द पहुंचता था. So feeble had he grown, इतना कमजोर हो चुका था वो. I was glad to get away, मैं खुश था जाने में ही. गेट अवे जाने में. ग्लैड मीन्स हैप्पी, ग्लैड मीन्स खुश. देयर इज आल्सो सेकंड ग्लैड, GLAD, ग्लैड. इट मीन्स एन ओपन फील्ड इन ए फॉरेस्ट, जंगल में एक खुला मैदान. और ग्लैड, ग्लैड मीन्स चमक. फॉर एग्जांपल शाइन, मून. फॉर एग्जांपल मून ग्लैड, यानी चांद की चमक या चांद की शाइन. चलो, I had given those boots up. Here we have the words give up. Give up means छोड़ना. So given up means left. I had left those boots. मैंने छोड़ दिए हो. When one evening they came. मैंने वो छोड़ दिए लेकिन एक शाम को वो पहुंचे. Here they refers to the boots or shoes. Opening the parcel, opening the package. मैंने parcel खोला. I set the four. Yes. I set the 4 pairs out in a row. Set out means placed. मैंने रखे 4 जोड़े एक ही लाइन में. Row means line. Then one by one I tried them on. तब एक एक करके मैंने उनको try किया. Try means tested by wearing. मैंने पहने फिर देखा फिट है या ना अनफिट है. There was no doubt, कोई शक नहीं था. About इसके बारे में. In shape and fit, शक्ल भी ठीक थी, फिट यानी फिट थे, मुनासिब थे, बराबर थे. इन फिनिश, चमक में भी. एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, और उनकी क्वालिटी जो थी. क्वालिटी यू नो, लेवल ऑफ एक्सलेंस, कितने बेहतर हैं चमड़े की. चमड़े का स्टैंडर्ड कितना था वो भी अच्छा था. दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड मी, ये पहले से ज्यादा अच्छे थे जो उसने मेरे लिए बनाए थे कभी. एंड इन द माउथ ऑफ वन ऑफ द टाउन वॉकिंग बूट्स आई फाउंड हिज बिल, और जो ये फैशनेबल शूज थे उनके एक के मुंह में, बूट्स के मुंह में मैंने देखी बिल. बिल आप जानते हैं, रकम की फिरिस्त. हाँ, द अमाउंट वाज द सेम एज यूजुअल, रकम थी जो आमतौर होती थी. बट इट गेव मी क्वाइट ए शॉक, लेकिन उसे मुझे मिला शॉक. शॉक मीन्स ब्लो, शॉक मीन्स सरप्राइज, शॉक मीन्स सदमा. मुझे सदमा लगा, चोट लगी. ही हैड नेवर बिफोर sent it in till quarter day. उससे पहले ये कभी नहीं बेचता था. हाँ, क्वार्टर डे यू नो, 3 महीने के बाद जो पहला दिन होता है उसमें जो अकाउंट, इसका हिसाब लगाया जाता है तो उसको कहते हैं क्वार्टर डे. जैसे मुलाजिम को 3 महीने के बाद हिसाब लगाया जाता है, उसका कितना DA वगैरह मिलेगा. ये तो असल में रिलेटेड है अकाउंटेंसी के साथ. यस. आई फ्लू डाउनवर्ड्स, हियर फ्लू मीन्स रेन. आई रेन डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ी से नीचे आया. एंड रोड ए चक, और मैंने एक चक लिखी. यू नो, चक 2 किस्म की होती है. एक हो गई पैसे की चक, CHEQUE. दूसरी हो गई चक CHECK, इट मीन्स रुकावट, इट मीन्स रोक. हाँ, मैंने ये लिखी. एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माय ओन हैंड, और उसको डाला इस चक को अपने हाथों से. मैंने लिख लिया इसको और डाला डाक में. ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद. पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई वाज पासिंग थ्रू लिटिल स्ट्रीट. यू नो, लिटिल स्ट्रीट में स्मॉल स्ट्रीट, स्मॉल लेन. आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा मैं अंदर जाऊंगा उसके दुकान में. एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड. हाउ स्प्लेंडली, कैसे नाइसली, अच्छे तरीके से, मौजूद नए जो बूट वो मुझे फिट आते हैं. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, जब मैं पहुंचा जहां उसका दुकान था, हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम गायब ही था. हिज नेम हैज डिसअपीयर्ड. सेटल दियर, फिर भी इन द विंडो, खिड़की में. वायर द स्लिम वायर द स्लिम थिन shoes, the patent leathers with cloth tops. The high class shoes, सनद याफ्ता जो जूतों पर चमड़ा लगा हुआ था उनसे बने हुए. But their top was made of cloth. And the sooty riding boots,
There were also black, amusing shoes. Yes, next para I went in, मैं अंदर चला गया, very much disturbed, very much upset, मैं बादल था, मैं फिक्रमंद था, disturbed means upset, worried, into two little shops, दो दुकानों में, again made into one, इनको एक बनाया गया था, was a young man, वहाँ एक जवान आदमी था, ऐसा था, with an English style, English face, yes, English face, here face means style, here face means look, here फेस मीन्स अपीयरेंस, यानी उसकी शक्ल सूरत कैसे लगती थी, अंग्रेज जैसी. मिस्टर जसल इन, मैंने बोला क्या मिस्टर जसल अंदर है. आई सेड, ही गेव मी स्ट्रेंज इनग्रेशिएटिंग लुक. ओह द मैन विद इंग्लिश फेस, ही गेव मी स्ट्रेंज, उसने मुझ पर अजीब नजर डाली. इनग्रेशिएटिंग मीन्स प्लीजिंग, पसंदीदा, खुश करने वाली, उसने मुझ पर नजर डाली, या ऐसे कहेंगे कि ऐसे नजर डाली वो मुझे खुश, ऐसे कहते हैं ना चाइनीज में, जिसको है मुस्कान उसकी है दुकान, यानी दुकानदारी वही करता है जिसके चेहरे पर मुस्कान हो, क्या कहते हैं वो, स्माइल हो, हाँ हंसी हो. नो सर ही सर से कहा नहीं, नो नो बट वी कैन अटेम्प्ट एनीथिंग विद प्लेजर, हम आपकी कोई भी काम कर सकते हैं खुशी खुशी से. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हाँ टेक ओवर ही मीन्स, टेक ओवर मीन्स अज्यूम कंट्रोल, हमने ये लिया है ये दुकान, हाँ इसकी जिम्मेदारी, हाँ टेक ओवर, दूसरी फॉर्म टुक ओवर, तीसरी फॉर्म टेकन ओवर. यू हैव सीन आवर नेम, आपने देखा होगा ऊपर अपना नाम. नो डाउट, कोई शक नहीं. नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर, वी मेक, वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल, हम बनाते अच्छे लोगों के, यानी रईस लोगों के, अमीर लोगों के लिए, शाही खानदान के लोग. यस यस आई सर, मैंने कहा, बट मिस्टर जसलर, where is Mr. Jessler? Oh, he answered, अरे उसने जवाब दिया, हाँ क्या जवाब दिया, डेट, वो बेचारा मर चुका है. डेट, और दीदा मार का एक्सप्लेनेशन, यानी ये मेरे लिए सरप्राइज था. बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बुक्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने उसे ये जूते हासिल किए सिर्फ लास्ट वेडनेसडे, जो पिछली वेडनेसडे थी, पिछले हफ्ते की वेडनेसडे थी. हाँ, यू नो वीक मीन 7 days, और there is second week, W-A-K week, that means कमजोर people. He said, उसने कहा, a shocking go. It is a terrible moment. Shocking means terrible, very bad. Poor old man starved himself. बेचारा गरीब आदमी, वो अपने आप को फाका करता था. He often put himself hungry. Now there is good God. Good God, it is an interjection. You know interjection is a part of speech, where we see surprise. Oh, good God means God in heaven. It is said when there is some surprise. Slow starvation, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फाका दिया, हाँ फाका कशी की, भूखमरी की. द डॉक्टर कॉल्ड इट, यानी ये लफ्ज किसने बोला है, डॉक्टर ने. किसको, जो नया दुकानदार है उसको, कि इसने जो जसल ब्रदर है उसने अपने आप को फाका 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 भूखमरी की. You see he went to work in such a way. आप देखते हैं कि ऐसे तरीके से वो काम करता था. Would keep the shop on, दुकान को जारी रखता था, यानी खुला रखता था. Wouldn't have a soul touch his boots except himself. Now here, have a soul touch his boots, it means did all work by himself. खुद सारा काम करता था, हाँ. Except here means without, हाँ. When he got in order, जब इसको ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, it means इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता था. People won't wait, लेकिन लोग सब्र नहीं करते हैं. हाँ, yes, सोफी साहब, हाँ, have a soul touch his boots, हाँ, it means he did it all by himself. When he got in order, जब इसको ऑर्डर मिलता, it took such a time, people won't wait, लोग इंतजार नहीं करते. He lost everybody, उसने हर एक को खो दिया. It means he lost his, everybody means his every customer, every client, and there he would sit going on and on. वहाँ वो बैठता था. Going on and on means he worked continuously. I will say that for him. मैं ये बात कहूँगा उसकी तरफ से. Not a man in London made a better boot. लंदन में ऐसा कोई बूट, कोई भी शख्स नहीं न था जो ऐसा बूट बनाता था.
Yes. Oh. it, बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन देखो आजकल क्या कंपटीशन है, क्या मुकाबला ही। नेवर एडवर्टाइज, वो कभी इश्तहार नहीं करता था, मनाजी नहीं करता था और पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करता था। वुड हैव द बेस्ट लेदर, उसके पास बेहतरीन क्या होता था, चमड़ा होता था। टू डी एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो सारा ये खुद करता था। वेल देयर इज, हाँ देयर इट इज, देखो वहाँ उसके जूते वहाँ हैं। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, आप क्या ख्याल कर सकते हैं जो उसका सोच है। बट स्टारवेशन, सिर्फ स्टारवेशन, देयर इज अगेन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट मीन इट्स आल्सो ए सरप्राइज। Oh, that may be a bit flowery, as the saying is. हाँ कहा, मतलब ये तो बात है। That may be a bit flowery, flowery उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बात को अच्छे अल्फाज में कहते हैं। तो here flowery means overly decorative, overly decorative यानी ये सजा सजा के बात कहें। But I know myself, he was sitting over his boots day and night, लेकिन मैं अपने तौर कह सकता हूँ he was sitting over his boots means he was making boots day and night, दिन रात, to the very last, to the very end, यानी जब उसको बेचारे को मौत भी आ गई। you see, आप देखते, I used to watch him, मैं उसको देखता था, हाँ बार बार निगरानी करता था। never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent left, बेचारे को खाने के लिए टाइम नहीं था। हाँ, never gave time to eat, never had a penny in the house, penny means money, घर में पैसा भी नहीं होता था। all went in, सारा कहाँ गया, in rent, all went in means all was spent on, rent means किराया and leather, और leather, now I can ask you rent, rent, it means किराया जो दुकान वगैरह के लिए देता है। सेकंड इज फियर, जो हम गाड़ी वगैरह का किराया देते हैं। हाँ, लेदर, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, कैसे वो इतनी उम्र इसने कैसे काटी मैं नहीं जानता हूँ। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट मीन्स फिनिश्ड हिज एनर्जी, उसने अपनी तवन्नाई बेचारे ने खत्म। ही वॉज ए कैरेक्टर, कैरेक्टर यू नो, करेक्टर मीन्स ए पर्सनेज, ए पर्सनैलिटी, वो एक शख्सियत थी। बट ही मेड गुड बुक्स, लेकिन बेचारा अच्छे अच्छे शूज बनाता था। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा, ही मेड गुड बुक्स, वो अच्छे अच्छे बूट बनाता था। एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विक, मैं ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सका। आई टर्न, मैं मुड़ा, एंड वेंट आउट मीन्स लेफ्ट, गो आउट, लीव क्विकली, फॉर I did not want that you to know that I could hardly see, मैं इस जवान को ये नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता था कि वो क्या करे, कि वो जाने कि मैं, मुझे क्या हुआ अंदर अंदर से, मुझे क्या हुआ। हाँ बस मैंने क्या किया, I could hardly see, कि मैं मुश्किल से फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। Yes, students, turn to page number 41. We have some minutes left. Let us do the exercise on vocabulary. The present column have taken from the lesson. Match them with their meanings in column B, and then use some of phrases to complete the passage given below. Let us do these in hurry or quickly. First is making water come into one's mouth. इसको आएगा आपको पार्ट नंबर जे, फील टेम्प्टेड। शाबाश, होप यू आर नोटिंग डाउन। वन ट्यून्ड वॉइस, उसको आएगा ए, मोनोटोनस। फिर है थर्ड, पोजेस्ड बाय द आइडियल। शाबाश, कौन सा पार्ट आएगा इसको, यस एफ पार्ट आएगा। टू हैव हाई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। फिर है पार्ट फोर, इंसेंस ऑफ बूट्स स्टिचड इनटू देम, इसको आएगा iPod, the boots were made with great reverence and perfection। फिर है नंबर 5, feeling himself into the heart of my requirement, इसको आएगा iPod, understanding exactly what one needs। yes, then this part number 6, surge up, इसको आएगा D part, rise।
फिर है 7 अकाउंट फॉर, इसको आएगा सी ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। फिर एच पॉट लाइक एन ओवल सरप्राइज्ड इन डे लाइट, it means part E is puzzled and disturbed. Then there is part 9 absent mindedly, इसका आएगा not focused. Then last dignified isolation, इसका आएगा G part in a grave detached manner. Now what we have to do, we have to put the side A words or phrases into the blanks. Yes, hope you are attentive. The smell of freshly roasted corn floated into the storm. Absent-mindedly of the young boy who looked up, making water come into his, यहाँ है ना वन, इसको करना है his mouth from his books. He could however not account for में वजाहत करना, 7 आएगा account for the source of the smell because there was no one at home and the kitchen was empty. He felt as puzzled as an, इसको आएगा 8 like, लेकिन काटना है वहाँ, क्योंकि इसने यहाँ as पहले ही लगाया है। as an owl surprised in daylight. फिर है he felt extremely hungry and all kinds of emotions, इसका आएगा surged up. नंबर 6 surge, इसको past tense लगाना है, surged up inside him. Finally he traced the smell to some place just outside his window. He saw a vendor, रेडी वाला या खांचे वाला, standing in dignified isolation, roasting corns and calling out to the passers-by, राहगीरों को in a dash, इसका आएगा one tuned voice to buy his corners. Will you cue Olomouc Hoyes in Badam? ठीक. Now please turn your page on page number 42. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, उनको 3 पॉसिबल मीनिंग है, आपको अप्रोप्रिएट करना है सिलेक्ट लेसन के हिसाब से। चलो फर्स्ट है टेनिमेंट, इसका आएगा ए पार्ट ए लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू फ्लैट्स। फिर है इनकंसीवेबल, इसका आएगा बी पार्ट अनथिंकेबल। फिर है थर्ड प्रोटोटाइप, द फर्स्ट और प्राइमरी टाइप ऑफ विच अ कॉपी is made. फिर है haunted, here it means disturbed the mind. फिर है mysterious, it means inexplicable, मामा पुलिस राह। फिर है divest means seaport, to take something off somebody. फिर नंबर 7 ingratiating, जैसे आज आपने पढ़ा trying to please। फिर है reproachful, इसका आएगा being critical। फिर 9 conspiracy, या plan to do something bad, मंसूबा बनाओ किसी को बुरा करने का। फिर है tremulous, it means nervous, it means nervous और frightened। आपको बस आज इतना ही, ठीक, ऑल ओके, सलाम अलैकुम। हाँ, तीसरे को है जो ओरिजिनल कॉपी होती है, द फर्स्ट और प्राइमरी टाइप ऑफ विच अ कॉपी इज मेड। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अटेंड रहने के लिए। सलाम अलैकुम।